نے نماز استغفار شروع کی. پہلے میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا, اب 2 گھر انڈیا میں ہے, ایک گھر میں ہے, ابھی ایک گھر مشہد میں خریدنے آیا ہوں. 2 سال کے بعد مجھے پروموشن ملنے والی تھی, 2 سال کے بعد. لیکن مولانا ایک ہفتہ جب سے آپ نے کہا میں نے نماز استغفار شروع کی, ایک ہفتے میں مجھے وہ پروموشن مل گئی جو 2 سال بعد ملی. آپ کا دوست کون ہے؟ ہم سمجھتے میرا دوست وہ ہے جو میری تعریف کرے. نہیں, میرا دوست وہ ہے جو میرا عیب نکالے, میرا عیب بتائے. میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں, میں ممبر پہ آنے سے پہلے میرے چہرے پہ کچھ لگا ہوا تھا, مجھے نظر نہیں آیا, میں آئینے کے سامنے نہیں گیا, کسی نے کہا مولانا صاحب یہ صاف کر لیں. اس نے مجھ پہ احسان کیا نا. اتنے سارے لوگ دیکھتے, سارے مذاق اڑاتے, جس نے مجھے میرا عیب بتایا اس نے تو مجھ پہ احسان کیا. ہم عجیب لوگ ہیں. یہ نفس ہمارا کا دھوکا ہے. ہمیں اگر کوئی نصیحت کرتا ہے ہم اس سے دشمنی کر بیٹھتے ہیں. اگر کوئی کہے تم میں تکبر کی بیماری ہے, تم میں ریاکاری کی بیماری ہے, تم میں فلاں بیماری ہے, ہم کہتے نہیں اس سے میری کامیابی برداشت نہیں ہو رہی, یہ جل رہا ہے, اور ہم اسی کو دشمن سمجھتے ہیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کیا اور کہا کہ بھائی بہن تمہیں کینسر ہو گیا ہے لیکن ابھی ارلی سٹیجز پر ہو, جلدی علاج کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے, کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ غصے میں آ کر کہے ڈاکٹر مجھے کینسر نہیں تجھے کینسر ہے, تیرے باپ کو کینسر ہے, تیرے دادا کو کینسر ہے, تیرے خاندان کو کینسر ہے؟ کبھی ایسے کہا؟ آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب شکریہ کہ آپ نے جلدی ڈائگنوز کیا, اب بتائیے میں علاج کیسے کروں. مگر نفس ہمارا بڑا خطرناک ہے کہ آپ کو امام زمانہ سے دور کرتا ہے, کیونکہ جتنا آپ برائی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے امام سے دور ہوتے رہیں گے. اب کیا ہوگا؟ نفس ہمارا جب کوئی نصیحت کرتا ہے, یہ نفس کی صفت ہے, نفس کی ایک نفس دشمن ہے. نفس کی ایک صفت کیا ہے؟ نصیحت پسند نہیں کرتا. نفس کی دوسری صفت کیا ہے؟ ہمیشہ خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. اب ہم نے اسے شکست دینا ہے, اور ہم نے کیا کہا؟ اب موضوع جو ہمارا چل رہا ہے, نفس کو جب شکست دیں گے تو امام کے قریب ہوں گے, جب نفس کو شکست دیں گے تو مولا کے قریب ہوں گے. اب دیکھیے جمعہ آنے والا ہے, ملتان کے مومنین کے لیے بہت بڑا امتحان, نفس کو شکست دینے کا امتحان. دعائے ندبہ صبح 4:30 بجے. کون آئے گا؟ نفس کی آواز ہے. سب آئیں گے, روح کی آواز ہے. اب ہاتھ بلند کر کے جو نفس کو شکست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ وعدہ کریں کہ ہم دعائے ندبہ میں آئیں گے اسی جمعے کو صبح 4:30 بجے. چلے ہاتھ نیچے کر لیجئے. اب وہ جو بیگمات کو بھی لائیں گے ہاتھ اٹھائیں. جی تعداد کم ہے, اکثر میرے خیال میں غیر شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایسے لگ رہا ہے. ہاں جی صلوات پڑھیے بآواز بلند علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جیسے نفس کو آپ نے خود شکست دینی ہے نا, ویسے بیوی بچوں کو بھی موٹیویٹ کیجئے. قرآن کی آیت ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, خود کو بھی آگ سے بچاؤ, بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. خود کو بھی امام زمانہ سے کنیکٹ کرو, بیوی بچوں کو بھی بولو بیوی آؤ اٹھو, بیٹے آؤ اٹھو, بیٹی آؤ اٹھو, امام زمانہ کی دعائے ندبہ پڑھنے جانا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کم سے کم جو مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں اتنے مومن تو انشاءاللہ صبح 4:30 بجے دعائے ندبہ پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے امام زمانہ کی دعا پڑھنے کے لیے. یہ نفس کو شکست دینے کا بہترین امتحان ہے. جس مومن نے القادر المقتدر القوی القائم پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ تعداد اچھی ہے لیکن پھر بھی کم ہے, کاش کے زیادہ ہوتی, کاش کے زیادہ مومنین اپنے مومن آپ نے ہاتھ جھکا سکتے ہیں, کاش کے مومنین زیادہ اپنے مومنین کو یاد کرتے. میں نے کہا کہ 3 لوگوں کی دعا 3 لوگوں کے حق میں قبول ہوتی ہے, حق میں, مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں, اور مومن کی دعا مومن کے حق میں. آپ پارا چنار کے مومنین کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ ان کے بچے مر رہے ہیں, ان کی بچیاں مر رہی ہیں, ہم نے آپ نے کچھ نہیں کیا. فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ لبنان کے مظلوموں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اسی طرح ایران اور شام کے مظلوموں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قربانی وہ دے رہے ہیں, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. بھائی کم سے کم یہ کام تو کر لیں کہ آدھا گھنٹہ القادر المقتدر القوی القائم کا ذکر کرے, خدایا ظالم کا تختہ پلٹ دے. کم سے کم اتنا کام تو کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہم نہ کریں تو کل ہم سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے کیوں نہیں کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے ڈرامے دیکھے, آپ لوگوں نے فلمیں دیکھی, آپ لوگوں نے چینل اخبار دیکھی, آپ لوگوں نے گپ شپ کی, آپ لوگوں نے ناشتہ کیا, آپ لوگ آفس میں گئے, آپ لوگوں نے دنیا داری کا ہر کام کیا, مگر ایک مومن بھائی کے لیے اگر آپ ایک آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں نکال سکتے. اور میں نے کہا امام بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں, چلتے پھرتے جاب پہ جا رہے ہیں, وضو کی شرط نہیں, مصلی پہ بیٹھنے کی شرط نہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, القادر المقتدر القوی القائم, القادر المقتدر القوی القائم. اللہ کے نام ہے, اس کے کئی اور فائدے. اب میں آج آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں, بڑا سپر پاور نسخہ. ایک تو میں نے 1000 حاجتوں کا نسخہ بتایا, سورہ الحم اور سورہ الحم کے بعد کافرون کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ
तौहीद 10 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, और पूरी नमाज फजर की तरह, और उसके बाद सजदे में 10 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम, और 10 मरतबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, और 10 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये बड़ा कमाल का नुस्खा है, अगर याद रखिए, अगर सातों आज़ा गुनाह से पाक हो। आज का एक कमाल का नुस्खा, अगर सुनना नहीं चाहते तो बुलंद तरीन सलवात। चले कुछ लोग समझ गए, अगर सुनना, अब अगर आज का नुस्खा सुनना चाहते तो बुलंद तरीन नारा हैदरी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, दुनिया आखिरत में कामयाबी दे। मजलिस में आने का मकसद ये कि ज्यादा से ज्यादा इंशाअल्लाह यहाँ से सीखें और पूरे साल का कोटा लेकर जाइए। अब मैं जो इतने आपको नुस्खे दे रहा हूँ, सारे एक दिन में तो आप अमल नहीं कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस अमल करें। ये नमाज है, नमाज इतनी कमाल की कि आयतुल्लाह बहजत कहते हैं, इन्होंने नौजवानी से नमाज पढ़ी, कभी ये नमाज नहीं छोड़ी। इसका बेहतरीन वक्त है सहर का टाइम, नमाज फजर से पहले। कहते हैं अगर कोई ये नमाज सिर्फ 10 दिन पढ़े, कितने दिन? सिर्फ 10 दिन, उसकी जिंदगी में जितने ताले लगे हुए हैं, जितनी बंदिशें, सब खुल जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, आयतुल्लाह बहजत कह गए, बुजुर्ग आरिफ है, बुजुर्ग आलिम है, बुजुर्ग हस्ती गुजर चुकी है, 2009 में इनका इंतकाल हुआ। लेकिन अगर याद रखिएगा, मोमिन आते हैं कहते हैं मौलाना साहब आपने तो 10 दिन कहा था, हम तो 100 दिनों से अमल कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। तो ये वही बात है कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक आदमी बहुत मोटा हो गया था, अक्सर ये मिसाल लेता हूँ, बहुत मोटा हो गया था, तो डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कहा देखो, अगर तुम पतला होना चाहते हो तो वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज के बाद उसने कुछ नहीं पूछा क्या करना है, इसने एक्सरसाइज तो की 6 महीने, लेकिन और मोटा हो गया। कहा डॉक्टर साहब आपकी बात का तो उल्टा असर हुआ। कहा एक्सरसाइज के बाद तुम क्या करते थे? कहा पाए खाता था, नहारी खाता था, पराठे खाता था, मैंगो मिल्क शेक पीता था। कहा एक्सरसाइज के साथ परहेज करोगे तो पतले होगे, एक्सरसाइज के बाद अगर खाओगे तो मोटे हो जाओगे। भाई यही है, ये एक्सरसाइज जो हम आपको दे रहे हैं, अब इसके साथ परहेज करोगे तो वो असर होगा जो चाहते हो, वरना असर तो होगा, असर जरूर होगा, लेकिन जो असर आप चाहते हैं उसे अगर हासिल करना है, परहेज जरूरी है। डॉक्टर आपको शुगर की दवाई देता है, आप शुगर की दवाई खाते हैं, फिर साथ में गुलाब जामुन भी खाते हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैनी, सारी मिठाई की दुकान आप खा लेते हैं। तो भाई डॉक्टर कहेगा भाई ये दवाई जो तुम खा रहे हो, इंसुलिन जो लगा रहे हो, इसका मतलब ये साथ में परहेज करो। परहेज करते नहीं, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी मिठाई की दुकान खाली। परहेज जरूरी है। अगर आप इन नुस्खों पे अमल करें, खुदा की कसम लेके मिंबर पे कह रहा हूं, अहले बैत के नुस्खे नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, मुर्दे को जिंदा करते हैं, मगर शर्त यह है कि परहेज। और ये नुस्खा नमाज जो बता रहा हूं मेरा नहीं है, रसूल पाक का नुस्खा है। रसूल पाक कहते हैं अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाए तो इस नमाज को पढ़ो। आज चलो भैया कहते हैं 10 दिन पढ़ो। अच्छा मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बताऊं। अफ्रीका में थे तो एक मोमिन आया, एक बंदे खुदा को 500 यूरो की जरूरत थी। अब मेरे जेब में नहीं थे पैसे, वो बेचारा मजबूर था, उसे क्या मजबूरी थी। अब मैंने कहा खुदाया, या मेरे पास ऐसे लोग न भेज जिनको मैं मदद न कर सकूं, या अगर भेजता है तो बंदोबस्त कर। तो मैंने नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़ी, यही नमाज जो आपको बता रहा हूं, ये मैंने पढ़ी। आधी रात को एक आदमी आया, चेहरा छुपा हुआ, टोपी पहना हुआ, और जनाब अजीब व गरीब बोलिया। मैं परेशान, ये आदमी मुझे मारने आया है, क्या करने आया है? कहा मौलाना साहब बैठिए। बैठा और उसने मुझे एक पैकेट दिया, एनवेलप दिया। कहा मौलाना साहब खुदा हाफिज, और तेजी से भाग गया। अब मैं हैरान, ये आदमी कौन, ये एनवेलप क्या? मैंने जो खोला उसके अंदर 500 यूरो था। ये नमाज इस्तिग़फ़ार इतनी पावरफुल है कि अगर इंसान के सातों आज़ा पाक हो फौरन असर दिखाती है। अच्छा फिर मैंने ये वहां पर बताया, वहां मोमिन को बताया। एक मोमिन ने कहा मौलाना मेरी जॉब 2 साल के बाद मुझे प्रमोशन मिलने वाली थी, 2 साल के बाद, लेकिन मौलाना 1 हफ्ता जब से आपने कहा मैंने नमाज इस्तिग़फ़ार शुरू की, 1 हफ्ते में मुझे वो प्रमोशन मिल गई जो 2 साल बाद मिलनी थी। फिर एक मोमिना ने इंग्लैंड से बताया, उसने कहा मौलाना हमारा वीजा फंसा हुआ था, इस नमाज इस्तिग़फ़ार पे हमने अमल किया, 2 हफ्ते 3 हफ्तों के अंदर अंदर हमारे वीजे का मसला खत्म हो गया। कई इस तरह के। और जो एक बुजुर्ग आलिम दीन ईरान के हैं वो बताते हैं, कहते मैंने नमाज इस्तिग़फ़ार लोगों को बताई और उसकी वीडियो बन गई, क्लिप बन गई, बड़ी मशहूर हो गई, और वो बहुत सारा उस पर अमल किया, मगर मैंने खुद अमल नहीं किया। कहते एक दिन मैं मौला रजा के हरम आया, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने कहा मौला मैं आलिम दीन हूँ, किस किस से मांगूंगा? आलिम की इज्जत होती, किसी से मांगता तो नहीं आलिम। तो मौलाना साहब मौलाना ने कहा कि मैंने कहा इमाम ज़माना आप, इमाम रजा आप मदद कीजिए, कोई पैसा भिजवाइए, कोई तरीका, कोई वसीला, मुझे मदद कीजिए, मेरी माली मुश्किल खत्म हो जाए। ये ईरानी आलिम कहते हैं मैं वहां बैठा हुआ था मौला की ज़री के सामने, एक हिंदुस्तान का आलिम दीन आया और उसने मेरी तरफ देख कर कहा नमाज इस्तिग़फ़ार वाले मौलाना? कहा, मैंने कहा जी जी, क्योंकि इन्हें भी मालूम था कि इनका क्लिप बड़ा मशहूर हो गया है। अब ये हिंदुस्तानी आलिम ईरानी आलिम को कहते हैं मौलाना आप
आपकी क्लिप मैंने देखी थी, पहले पढ़ी तो थी मैंने ये नमाज इस्तिग़फ़ार, लेकिन जब आपकी क्लिप मैंने देखी तो मैंने रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दी। कहा मौलाना इस नमाज इंडियन मौलाना, हिंदुस्तानी मौलाना, ईरानी मौलाना को बता रहे हैं हरम मौलाना रजा में कि मौलाना साहब जब से मैंने नमाज इस्तिग़फ़ार शुरू की, पहले मैं किराए के घर में रहता था, अब 2 घर इंडिया में है, एक घर कुम में है, अभी एक घर मशहद में खरीदने आया हूं। अब ये ईरानी मौलाना कहते हैं गोया इमाम रजा ने मुझे समझाया, ए आलिम बेअमल दूसरे को बोलता है खुद नहीं करते, जा नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़। कहता है फिर मैंने भी नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़ी और फिर जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आई। ये नमाज इस्तिग़फ़ार सुपर पावर है, कमाल की नमाज है, गोया समझिए एटम बम का फार्मूला है, और उसे आप जब भी उस पर अमल करेंगे आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर सातों आज़ा गुनाह से पाक, आंख से नामहरम को देखोगे, कान से गाने सुनोगे और जनाब गीबत पे गीबत करोगे, जो आज गीबत पे हमने गुफ्तगू करनी थी लेकिन वक्त नहीं रहा कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है कि आप गीबत करेंगे, ज़िना से बड़ा गुनाह। गीबत गोया आपने उस इंसान की शख्सियत को कत्ल कर दिया। गीबत आपने की 40 दिन तक आपका कोई अमल कबूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, ये हदीस सुनिए, जो इंसान बेकार में बेहदफ बेदलील गीबत करता है, छठे सरकार फरमाते हैं शैतान उसके नुत्फे में शरीक हो जाता है। आपने मौलाना साहब के नुस्खे आपने दिए और हमने अमल किया, गीबत आपने की, अब हमारा क्या कसूर? शैतान उसके नुत्फे में शरीक होता है, यानी उसकी नस्ल तबाह हो जाती है। किस गीबत करने वाले की? जो बेहदफ ऐसे ही गीबत करता है, आदतन गीबत करता है, क्योंकि गीबत के मुख्तलिफ असबाब है। कभी गज़ब में, गुस्से में गीबत करता है, कभी हसद में गुस्सा, कभी हसद में गीबत करता है, कभी इसी तरह तकब्बुर में गीबत करता है। मुख्तलिफ वजूहात है। एक इंसान ऐसे ही गीबत करता है, नो रीजन बिहाइंड गीबत, उस गीबत का उसको नुकसान ये होगा कि उसकी नस्ल तबाह होगी। गीबत पर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, आज क्योंकि वक्त नहीं रहा, वक्त की किल्लत की वजह से। नमाज इस्तिग़फ़ार सुनिए, नमाज इस्तिग़फ़ार अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर चाहे तो अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात ठीक कर ले। ये आदत बना दीजिए, कम से कम दिन में 1 मरतबा नमाज फजर से पहले सहर के टाइम, नहीं तो अगर दिन में 3 मरतबा पढ़े तो नूर अला नूर, एक फजर के साथ, एक ज़ुहरैन के साथ, एक मगरिबैन के साथ। बहुत आसान, 5 मिनट लगते हैं मुझे पढ़ने में। क्या है? अल्लाहु अकबर, नियत की, नमाज इस्तिग़फ़ार की, आपने नमाज शुरू कर ली, सूरह अलहम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद फिर अब सूरह कुल वल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह काफिरून भी नहीं पढ़नी। कौन सी सूरह पढ़नी? सूरह क़द्र, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। अच्छा, उसके बाद 15 मरतबा पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह, बस 15 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह। फिर रुकू में जाओगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, फिर वही रुकू में ज़िक्र रुकू के बाद 10 मरतबा पढ़ोगे अस्तग़फिरुल्लाह, बस खड़े हो जाओगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, 10 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह। सजदे में जाओगे, सजदे का जिक्र सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर 10 मरतबा वहीं पर अस्तग़फिरुल्लाह। उठोगे 10 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरे सजदे में जाओगे, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर 10 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह। फिर उठोगे 10 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरी रकत भी बिल्कुल इसी तरह 75 मरतबा हर नमाज में, हर रकत में, 2 रकतों में 150 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह। इतनी आसान और फायदे कितने ज्यादा। लेकिन वही मैंने कहा कि अगर आज़ा पाक हो, लेकिन अगर आपने गीबत की, मैंने कहा गीबत की नफ्स की खतरनाक बीमारी है कि इस गीबत के करने वाले को कितना गुनाह मिलता है, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। और गीबत अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ ज़बान से गीबत है, लोग समझते हैं सिर्फ मैंने ज़बान से कुछ कहा तो गीबत है। मैंने क्या गीबत की तारीफ बताई थी? कोई अमल किसी ने किया आपने देखा, कोई बात किसी ने कही आपने देखी और आपने सुनाई कोर्ट की, ये गीबत है, और उसे बुरा लगा जब उसे खबर नहीं। अब ये गीबत आप समझते सिर्फ ज़बान से नहीं, रिवायात में मिलता है गीबत अमल से भी है, गीबत इशारे से भी है, गीबत कोड वर्ड में भी है, व्हाट्सएप पर भी गीबत होती है। आप कहेंगे मौलाना साहब उस जमाने में व्हाट्सएप था नहीं। व्हाट्सएप से मकसद ये नहीं कि वो रिवायत में आया है कि व्हाट्सएप पे गीबत होती है, यानी अगर किसी इंसान की बुराई आपने व्हाट्सएप पे की वो भी गीबत काउंट होती है। अब इशारे से गीबत कैसे? रिवायत में मिलता है रसूल खुदा का जमाना था, किसी खातून का जिक्र हुआ तो रसूल की एक जोजा थी, उसने हाथ से कहा, वो खातून जो छोटे कद वाली, यूं हाथ से कहा, हम कहते हैं ना मोटा, गंजा, ये सारी कीमतें हैं, काला। एक रसूल खुदा के जमाने में एक सहाबी था, किसी सहाबी का जिक्र आया अल्लाह के रसूल के सामने, इसने कहा वो जो ज्यादा सोता है, रसूल खुदा ने बेगम को भी कहा, वाइफ को भी कहा और उस सहाबी को भी कहा, ये गीबत है, ये जो तुम हाथ से कर रही हो ना छोटे कद वाली, ये गीबत है, ये जो तुम कह रहे हो वो जो ज्यादा सोता है, ये गीबत है। कभी कभार आप इंसान की गीबत कर रहे होते आपको पता नहीं चलता, आप यूं हंसी मजाक यूं कर रहे होते, वो आ गया, मोटा आ गया, ये आप उसकी गीबत कर रहे हैं। और कितना बड़ा गुनाह कि ज़िना से बड़ा गुनाह।